The past week, whatever has happened on the internet, especially regarding the Azuz situation, I'm not going to get into details out of respect for the victims, as well as a lot of legal things have also started. Videos have already been taken down, and if you are someone who has no clue what I am talking about, you can go and check out other creators. This video is not about tea or gossip, it's about safety, especially for minor girls watching, because a huge chunk of my audience is from 13 to 24. Please, for the love of God, stay away from creators. I don't care who your favorite creator or celebrity is. You can like their content, reply to their stories, engage normally, absolutely you can. But uncomfortable situations with sexual undertones is exactly where the line should be drawn. If a creator is initiating anything inappropriate with you, block them and expose them if needed. They are literally texting half of the internet. They don't have standards. यार मैं बहुत एक विक्टिम ब्लेमिंग टाइप की चीज़ बोलने वाला हूँ ये सारे अंडर एज लोगों के लिए। अगर आप कभी भी इंटरनेट में किसी को डीएम करो, प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड मेंशन दैट यू आर अंडर एज। सबके पहले चार्ट आपकी होनी चाहिए। अगर आप मुझे भी डीएम कर रहे हो, हे राज, आई लाइक योर कंटेंट, आई एम अ ह्यूज फैन, आई एम 17 बाय द वे, प्लीज़, ठीक है। आपको अगर इतना ही प्यार जताना है अपने क्रिएटर्स को, प्लीज़ फकिंग मेंशन योर एज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्योंकि जितने भी थोड़े से भी दिमाग वाले लोग होंगे, जितना भी आपका दीन ईमान टाइप के लोग होंगे, वो मोस्ट लाइकली 17-16 देख के ही पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी लाइन बन जाती है, बहुत अच्छी लाइन बन जाती है कि आपको क्लियर दिख जाएगा कौन क्रॉस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। डू दैट शिट। Don't have boundaries, they don't have shit. For the past 6 or 7 months, a lot of creators on YouTube as well as Instagram and even celebrities have been exposed for being alleged predators. And every single time, it's the victims who suffer. Men do whatever they want. You go to the police, you'll be harassed. अरे यार, You go to your parents, you will be questioned. So that's the reality of the country. So unfortunately, safeguarding yourself is the only way to stay safe. The responsibility lies in your hands. You cannot survive in this country with the free flow that nothing wrong is going to happen to you. Your favorite creators do not exist in real life. I am present on a screen. You shut off your phone, I am gone. And stranger danger is real. Anybody you see on the screen is still a stranger to you. Have you forgotten that already? Now let's also talk about the entire tea gossip situation that happened in early January. Several of the conversations which were public were between two consulting adults. If a creator or a celebrity is single, not married, and both of you are willingly engaging in a conversation, and you make that conversation public, it is not exposed. Exposing is when that person is married, is already... Bro, this is something I have such a huge problem with. मेरे को खुद को कभी कभी डाउट होता है भाई। सोचो अगर मेरे पास से मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या कोई आके मुझ पे एलिगेशन लगा के चली जाए, क्रेजी एलिगेशन, जब मैं फेमस हो जाऊँ। मुझे लगता है सबके साथ ये होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी लफड़ा हुआ है और आप गलती से फेमस हो गए, तो वो पक्का रीसरफेस होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी है मेरे कॉलेज लाइफ में, जब मुझ पर चीज़ें लगाई थी लोगों ने, ठीक है, उस वक्त। और मैं ऑल्दो मुझे एक चीज़ हमेशा तब भी मैं मानता था, मैंने स्ट्रीम पे भी बोला हुआ है, आज भी मैं सेम ही चीज़ मानता हूँ। मेरी इस चीज़ में बिल्कुल आई स्टिक बाय इट, आई स्टिक बाय दिस फिलॉसफी। मुझे लगता है सब नीयत की बात होती है, सब नीयत की बात होती है। अगर आपकी नीयत सच में ठीक है, आप कितने भी लीचर टाइप के इंसान हो, अगर आपकी नीयत ठीक है, और नीयत ना ऐसी चीज़ है जो आप ना मुंह से वर्ड से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ओवर टाइम दिखती है लोगों को। आप मुंह से वर्ड से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की है तो आपके साथ जब होती है तो उसे पता चलता है कि आप कैसे आदमी हो। वो सब नीयत की बात है भाई। इसमें तो भाई कर्मा नहीं घुसाना चाहता मैं, बट इसमें तुम भरोसा नहीं करोगे। जब मुझ पर एलिगेशन लगे थे, फॉर 3 months people kept asking me for my side of the story. I didn't say a fucking word because मुझे लगता था भाई मेरी नीयत साफ़ है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और हो गई। जिस लड़की ने एलिगेशन लगाए थे वो सामने आके उसने अपॉलॉजी मांगी है, सबके सामने पब्लिकली। मैंने एक शब्द नहीं बोला कभी, ठीक है। तुम्हें ऐसी स्टोरी मिलेगी नहीं कि तुम देखते रह जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगी ऐसी स्टोरी कि कोई इंसान तुम पे कीचड़ उछाल रहा है और वो तुम्हारे सामने आके माफ़ी मांग रहा है विदाउट यू सेइंग अ फकिंग वर्ड, विदाउट यू नॉट डूइंग एनीथिंग। क्योंकि जितने भी अगर ठीक बेसिक से बेसिक भी लोग हैं, वो लड़की तो चलो अपना प्रोपेगेंडा बना रही है, उसके आजू बाजू लोग हैं वो सब चूतिया थोड़ी ना है। उनको दिखता है भाई 5 साल तुम कहाँ भागोगे, लॉ स्कूल 5 साल का होता है, तुम कहाँ भागोगे, अपनी नीयत से कैसे भागोगे तुम। तो लोगों को दिख जाता है कि हाँ भाई यार ये लड़की इसके बारे में ऐसा बोलती है, बट ये लड़की खुद ऐसी है, और इस लड़के को हमने कभी ऐसा कुछ करते देखा नहीं है। इवेंचुअली एवरीबडी फकिंग न्यू विदाउट मी इवन सेइंग अ फकिंग वर्ड। आपने तो बोला चुप नहीं रहना, मैं दूसरों को एडवाइस दे रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मुझ पर कभी कोई चीज़ होती है मैं चुप ही रहूँगा।
मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं सामने ही रहूँगा, मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं कहीं नहीं, मैं तो हो सकता है एड्रेस भी ना करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है। इनफैक्ट अगर कोई लड़की, कोई भी लड़की जो मुझे कभी भी रियल लाइफ में जानती है, ऑफलाइन जानती है, तो मुझसे ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो, मैं लड़कियों को छूता भी नहीं हूँ, पता है। मेरी लाइफ में एक रूल है कि आई नेवर टच पीपल फर्स्ट, तुमके कितना भी बड़ा जोक लग रहा हो ये। मेरे साथ जो लड़के हैं ना, मेरे साथ जो लड़के हैं जो सीयू में मेरे साथ पढ़े, तुम उनसे पूछ लेना, मैं हैंड शेक्स नहीं करता लोगों से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके पीछे बहुत रीजंस है। एक रीज़न ये है कि गर्मियों में तुम्हारे हाथ में पसीना होता है, मुझे पसीना नहीं पसंद, और मुझे इसलिए मैं हक भी नहीं करता। बट पॉइंट भी, मैं लोगों को छूता तक नहीं हूँ। तो अगर तो जब कॉलेज में मुझ पर एलिगेशन वगैरह किसी ने लगाया ना, मैं हंस रहा था, मैं हंस रहा था भाई, क्योंकि कोई नहीं भरोसा करने वाला था। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, नोबडी फकिंग बिलीव्ड, एंड उसको इवेंचुअली माफ़ी मांगनी पड़ी। भाई अपनी हिस्ट्री इतनी क्लियर रखो, ठीक है। हम कोई सीधे इंसान नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी में चीज़ें नहीं करी, चीज़ें बहुत करी हैं, लेकिन वो इतने अनडिनाइबली इन रूल्स से मैं वो चीज़ें करता हूँ कि कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। और तुम्हें भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अनकंसेंशुअल चीज़ों पे ही आपकी ऐसी तैसी हो सकती है, और अनकंसेंशुअल चीज़ें बहुत डार्क होती हैं। आप ये कोई ना, फिर आप आपसी मैटर नहीं, ये फिर कोर्ट कचहरी वाली बात हो जाती है अगर कुछ अनकंसेंशुअल करा आपने लाइफ में कभी, ठीक है। ये बहुत ख़राब चीज़ है, और इससे आपको जितना दूर रख सकते हो रखो। अपनी ज़िंदगी में रूल्स बनाओ, ठीक है। कोई भी आपसे लड़की फ्लर्ट कर रही है, कुछ कर रही है, मत, डोंट फकिंग गिव इन टू इट लाइक दैट, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर यार, अगर आपको इतना ही है ना, क्या कहते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो बड़े बड़े, और आपको, इफ़ यू वांट टू हैव विमेन इन योर लाइफ, गो टू फकिंग सम, क्या वो नहीं आती राया करके डेटिंग साइट है ना, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए आपको पैसे वैसे देने पड़ते हैं, इनवाइट ओनली, वहाँ पे जाओ यार। डू इट विद अदर इन्फ्लुएंसर्स, बट हो सकता है फिर वो आप पे वीडियोस बना दे। गो ऑन हिंज, बम्बल, टिंडर में, वर्स्ट वर्स्ट के सिनारियो आपको लोग डिस्परेट बोलेंगे, लेकिन आप इन सब से बच जाओगे। जो लड़की आपसे डेटिंग साइट पे मिली है, उसके साथ आपके साथ कुछ होता है, वो नहीं बोल सकते कि ये इस आदमी ने मुझे ग्रूम करा, बिकॉज यू मेट ऑन अ डेटिंग साइट। दैट्स द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। दैट्स द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू। यू कैन गो ऑन अ डेटिंग साइट एंड यू कैन मेक योर इंटेंशंस क्लियर। दैट्स द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू। डू नॉट फकिंग एंगेज विद योर फैंस। जो बच्चियां आपको डीएम में बोल रही हैं, आई एम अ ह्यूज फैन, उनसे ये सब मत करो। इफ यू वांट टू हैव समथिंग, गो ऑन अ डेटिंग साइट, you know, and make sure they are all above fucking 18, bro. Make sure they are all above 18. Are trying to make you uncomfortable again and again. Somehow something so predatory and serious has turned into a real trend. Everybody wants someone to spill the tea. This is the exact same bullshit that happened in the last stages of Me Too movement. Because of them, the real victims are not एक तो ये टी कल्चर भी ना, एक तो ये दिक्कत है। मुझे लगता है भाई, जेन्युइनली मैं इतना डिसेंसिटाइज्ड हो गया हूँ। तुमको पता, अगर मैं अजूज को फॉलो कर रहा होता, मैं मजाक नहीं कर रहा, और या फिर मैं उस कोर कास्ट को, लोअर कास्ट को फॉलो कर रहा होता, क्या बोल रहा हूँ मैं, और मैं उनको जानता और उन पे ये एलिगेशन लगते हैं, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उनको अनफॉलो कभी नहीं करता। आई वुडंट डू दैट बेस्ड ऑन दीज एलिगेशंस। आई वुडंट डू दैट बिकॉज आई रियली डोंट केयर अबाउट ऑनलाइन वर्ड। जो भी होता है, जो भी ऑनलाइन होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिक्कत ये थी अजूज के साथ, ये चीज़ रियल लाइफ एलिगेशन है कि उसने फिजिकली किसी को असॉल्ट करा है। ये प्रूव होता तो मैं इंस्टेंटली अनफॉलो करता, इंस्टेंटली। ये होता तो मैं इंस्टेंटली डिस्टेंस करता खुद को। लोअर कास्ट के साथ भी जो हुआ था, रियल लाइफ में हुआ था। आई थिंक ऑनलाइन एलिगेशंस लगाने को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। रियल लाइफ में कुछ है और वो इंसान विक्टिम बन के ऑनलाइन आ रहा है, तो फिर भी आप सुन लो, जो चीज़ ऑनलाइन चालू हुई है, ऑनलाइन ख़त्म हुई है, मुझे लगता है कि वो बस अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब ये पूरी इसने जो लिस्ट दिखाई है ना, इसमें जैसे टोटल गेमिंग, वो होटल बुला रहा था किसी लड़की को, फेक चैट्स थी, बट व्हाटएवर, बट इवन इफ दे वर रियल, आई स्टिल थिंक जो लोग इसमें उसको पुलिस कर रहे हैं टोटल गेमिंग को, उनको आपको जेल में डलवाना चाहिए, नॉट टोटल गेमिंग। अगर हाइपोथेटिकली टोटल गेमिंग किसी लड़की को होटल बुला रहा होता ऑनलाइन, तो जो लोग इस चीज को एक्सपोज करके उसको डिफेम कर रहे हैं, उनको जेल में डालना चाहिए, नॉट द गाय डूइंग इट। क्यों? क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड ये चीज हुई भी नहीं है। ऑनलाइन शब्द लिखना एक चीज होती है, और रियल लाइफ में तुम किसी को फोर्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो दूसरी चीज होती है। तो ऑनलाइन, you know how the people say it, you can just fucking close your phone. Nobody is forcing your hands to type something online. In real life, people can overpower you. So real life is vastly different and more serious than online.
ठीक है, हम वो लाइन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये दोनों बहुत अलग अलग दुनियाएं हैं और हमें इन्हें मर्ज नहीं करना चाहिए। हम इतने ऑनलाइन हो गए हैं क्रॉनिकली कि हमें लगता है ऑनलाइन ये बोल दिया मतलब हो गया। ठीक है, ऑनलाइन कितनी गाली गलौज होती है, कितना सब होता है, रियल लाइफ में जाके जब उसने थप्पड़ मारा था मैक्सटन को एल्विश यादव ने, तब तुम्हारी वो हुआ ना। ऑनलाइन तो कितनी गालियां बकते हैं एक दूसरे को, जब रियल लाइफ में चीजें होती है तब रियलाइज होता है ना, फक भाई इसने एक्चुअल में कर दिया, दैट्स अ फकिंग असॉल्ट, दैट्स अ क्राइम। तो ऑनलाइन और रियल लाइफ के बीच में ना एक अच्छा डिवाइसिव बैरियर बना के रखो। जो चीज़ ऑनलाइन होती है उसे ऑनलाइन रखो, उसको ज़्यादा भाव मत दो। जो चीज़ रियल लाइफ होती है उसे सीरियसली लो। उस पर ऑनलाइन तुम गॉसिप मत करो, दैट इज़ अ सीरियस थिंग, क्योंकि वो ऑफलाइन हुई है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है होना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। In real life, I am present on a screen. You shut off your phone, I am gone. And stranger danger is real. Anybody you see on the screen is still a stranger to you. Have you forgotten that already? Now let's also talk about the entire tea gossip situation that happened in early January. Several of the conversations पुखरा इंसान भी है यहाँ पे। which were public were between two consulting adults. If a creator or a celebrity is single, not married, and both of you are willingly engaging in a conversation, and you make that conversation public, it is not exposed. Exposing is when that person is married, is already in a relationship, has kids, or they are trying to make you uncomfortable again and again. Somehow something so predatory and serious has turned into a real trend. Everybody wants someone to spill the tea. This is the exact same bullshit that happened in the last stages of Me Too movement. Because of them, the real victims are not taken seriously. What hurts the most is how easily women themselves turn real suffering of anybody or uncomfortable situation that anybody might have went through into something about entertainment. Grown men do predatory shit, face no consequences, disappear for a bit, and come back with an absolute clean slate. Also, these are some questions that I have within this entire situation. Why are minors online? Where are the parents? There's no regulation, there is no parenting involved. On top of that, इंडिया में एज फार एज आई एम अवेयर, इफ़ यू आर अबव 16, क्योंकि ये इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब की एज मेरे ख्याल से 14, 15, 16 ऐसी कुछ है कि आप इसके बाद आप अकाउंट बना सकते हो लीगली। सो इफ़ यू आर अबव 16 यू कैन यूज़ इंस्टाग्राम, यू कैन यूज़ फेसबुक, यू कैन यूज़ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वाई आर माइनर्स ऑनलाइन? दैट्स बिकॉज वन, इट्स लीगल। सेकेंड, आज के ज़माने में जहाँ पे इंडिया में एजुकेशन ऑनलाइन है, पैसा ऑनलाइन है, जीपे ऑनलाइन है, पेटीएम ऑनलाइन है, फ़ोन देना बच्चों को मैंडेटरी है। ठीक है, अटेंडेंस तक ऑनलाइन लगती है कॉलेजेस की। तो पॉइंट इज़ कि एवरीबडी हैज़ अ फ़ोन, स्मार्टफोन्स आर एसेंशियल। चाय, छोटी से छोटी चाय की दुकान में भी यूपीआई लगा हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। वाई आर माइनर्स ऑनलाइन? बिकॉज दे आर लीगली ऑनलाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। By minors, if you're saying 12, 13, 14, 15, yeah, parental issue, definitely parental issue. But 12, 13, 14, 15 ऑनलाइन इन सब चीज़ों में तो नहीं पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। वो फिर उनको स्कैम करती हैं, फ्री फायर वाले, गिव अवे वाले, ये स्कैम करते हैं उनको, उनकी अलग बीटी है। पेरेंट्स तो इंडिया में ख़राब है ही हैं। क्यों ख़राब है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब है। उनको खुद दोनों मियाँ बीवी को नौकरी करनी पड़ रही है दिन में 10 घंटे, वो बच्चे पे ध्यान कैसे देंगे? जब मियाँ बीवी खुद नौकरी कर रहे हैं, घिस रहे हैं, तो बच्चे पे क्या ध्यान दें? जब बच्चे को जो टाइम है उसमें खुद लड़ाई कर रहे होते हैं कि तुमने बच्चे को ध्यान नहीं दिया, तुमने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। तो भाई whatever. So I don't think you can blame minors saying कि why are you online. आई थिंक यहाँ पे बर्डन तो पक्का उन पे ही जाता है जो इनको ग्रूम कर रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन क्यों घूम रहे हैं? बिकॉज कंडीशंस वैसी हैं। जो लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हीं पे ब्लेम जाना चाहिए। ब्लेम नहीं कर रही हो तुम बोल रही हो वाई आर माइनर्स ऑनलाइन। आई थिंक दे विल बी ऑनलाइन एंड दे विल एब्सोल्युटली बी ऑनलाइन ऑल द टाइम। ठीक है, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट media constantly pushes older men and younger women syndrome through songs, films. We all have ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एंड दैट्स नॉट ओल्डर मैन यंगर वुमेन, दैट्स जस्ट how it is, literally grown up watch. Especially in the case of minors, I've made 2 videos on Wattpad. The audience are majorly minors, and the content a lot of times is either written by women who are in their 20s or even someone who's 18. And what does it mostly include? Romanticization and glamorizing of age gap relationships, assault of women, kidnapping of women, hitting women. And when you call this shit out, done by women themselves, you become the misogynist. Suddenly, आई थिंक ये बहुत ख़राब क्रॉस ओवर है। टेकिंग Wattpad stories into this whole thing is a very, very, very bad choice.
बिकॉज आप फिर सेक्सुअल फिटिशेस और आइडियाज़ और फैंटेसीज वाली दुनिया को मर्ज कर रही हैं जो कि आपके चाइल्डहुड पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ द पीपल हु रोट इट. आई कैन सिट हियर एंड आर्ग्यू कि अगर आप एक माइनर हो और आपको ये सारी चीज़ें अपील करती है, वायलेंट चीज़ें, दे आर मोर लिंक टू योर ओन हाउस होल्ड एंड योर पेरेंटिंग दैन टू द पर्सन हु रोट इट. तो अगर आपको बर्डन किसी पर डालना है तो उनके पेरेंट्स पे अब डालो या उनके चाइल्डहुड पर डालो. भाई ऐसे तो मोमो की दुकानें खुली हुई हैं, छोले भटूरे की दुकान खुली हुई है, सारी तरह की दुकानें खुली हुई हैं. आप तो वही खाओगे ना जो आपको खाना है. आपको वो चीज़ें अपील क्यों कर रही हैं? बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, योर प्रेफरेंसेस. वो प्रेफरेंसेस कैसे डेवलप हो रही हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है. तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पे आप वॉटपैड में जो लोग लिख रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वॉटपैड में जो लोग लिखते भी ऐसी स्टोरीज, दे आर नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग माइनर चिल्ड्रन. दे आर जस्ट राइटिंग स्टोरीज, erotica स्टोरीज. I've had conversations with Wattpad writers when I was fucking 15, 16. You know, जो literally लिखते थे ये stories. And they were not targeting anybody young. ठीक है, हाँ, this is a trope, sure. बहुत सारे minors हैं, sure. But they don't write it for them. You know, they're just topics जो इतने heavily fetishized हैं, और उनके पीछे reasons भी है क्योंकि लोग उस पर कनेक्ट कर पाते हैं या फिर उसमें escape कर पाते हैं. क्यों कर पाते हैं? उनकी खुद की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो. तो इसमें 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन है. 50% जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है, 50% जो पर्सन लिख रहा है. ठीक है, लेकिन जो लिख रहा है वो प्रेडिटरी सेंस में नहीं लिख रहा है, वो अपने हिसाब से लिख रहा है. जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं जो उन्हें पसंद है. वो इसलिए नहीं लिख रहे ताकि तुम उससे सुन के उनके चंगुल में फंस जाओ. ऐसा कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, ना पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा, ना कुछ मिल रहा है. They don't really write it. They literally write it for their own fantasies, for their own fetishes. They write it for their own form as a self-expression. तो ये आप गलत मैच कर रही हैं यहाँ पे. You are a hurdle in their creativity, and these are not the things that are just happening on the internet. These are things you would have seen in your real life. Men in their 20s dating 16-17-year-old girls. What do they have in common with those girls anyways? Recently, one of very prominent feminist lawyers of this country, Indra Jaising, went to the Supreme Court to reduce the age of consent of girls from 18 to 16. Now, in a situation that we are talking about right now, for example, take a situation same as that, a man who's 26, 27, getting involved with a 16-year-old girl. Somehow it is proven that she gave consent even at 16 when you gave consent. How much information or idea of real world does that little kid even have? That's literally a child. At a time and a country where 15, 16, 17-year-old girls are already exploited, groomed. एक तो पता है, it's I would avoid like this is constructive criticism to Rishi, which is funny because Rishi is now we are connected on Instagram, which is very funny. But this is constructive criticism कि जब भी आप ऐसी हेडलाइन देखें, क्योंकि मुझे ये देख के लग रहा है लाइव लीक तो नहीं, लाइव लीक कहाँ जा रहा हूँ मैं, एक कोई लॉ के किसी पेज की वेबसाइट की, मतलब किसी आर्टिकल की हेडलाइन है ये. लॉ चक्र या ऐसा कुछ पेजेस के नाम होते हैं ना, तो वैसा मुझे देख के लग रहा है ग्राफिक देख के. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत मिसलीडिंग होते हैं. डू नॉट फॉल फॉर दीज. मुझे पढ़ना पड़ेगा कि ये आंटी जी ने ऐसा क्यों बोला है, और आपको भी पढ़ना चाहिए. तत्वा तो और ज़्यादा मिसलीडिंग है. तो कभी भी ये 4 हेडलाइन पढ़ के क्रिटिसिज्म मत देना किसी भी चीज़ का. और अगर आपने पढ़ा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है तो आप हमें भी बताओ कि ये चीज़ इसने एक्चुअली बोला क्या है. ठीक है, जब भी कोई जजमेंट भी आता है तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका ओबिटर डिक्टा, एक होता है रेशियो डायसेंडेंडा. तो ओबिटर डिक्टा क्या होता है कि जो चीज़ आपने ज़बानी बोली हुई है कोर्ट में, मैं जज की बात कर रहा हूँ, ये तो आपके अमेरिकस क्यों रहे हैं, ये तो कोई जज नहीं है, मैं जज की बात बता रहा हूँ. कभी कभी ये लोग इतने कुत्ते होते हैं हेडलाइन वाले कि एक होता है ओबिटर डिक्टा, एक होता है रेशियो डायसेंडेंडा. तो ओबिटर डिक्टा क्या होता है कि जज ने जजमेंट दे रहे थे और चीज़ें फैक्ट सामने रखी जा रही थी, जज सब कुछ देख रहा था और अपने ओरल रिमार्क्स दिए हैं जज ने. ओबिटर डिक्टा की कोई लीगली बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती, वो लिटरली ओरल रिमार्क्स है. जैसे मान लो मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं वकील हूँ, मेरे सामने भी एक वकील है, हम दोनों एक आपस में बहस कर रहे हैं, वहाँ पे जज बैठा है, जज बोलते हैं अरे लॉयर साहब रुक जाइए. ये लॉयर साहब रुक जाइए भी एक तरीके से ओबिटर डिक्टा है. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ओरल रिमार्क्स कि अरे मतलब जैसे मान लो कोई कोर्स केस का ही कोई फैक्ट्स चल रहे हैं, फैक्ट्स वगैरह सुने, उन्होंने बोला कि यार अच्छा विक्टिम ने जलेबी खाई थी, जलेबी तो यार वैसे जबलपुर की बहुत अच्छी होती है. दिस इज ओबिटर डिक्टा.
ठीक है, तो इट इज़ नॉट नथिंग सीरियस. इट कुड बी सीरियस ऑल्सो समटाइम्स जजेस ओरल रिमार्क्स दे के कुछ चीज़ें एडिशनली बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अपनी टिप्पणी देते हैं, बट वो ओरल रिमार्क है, उसको उन्होंने जजमेंट में लिखा नहीं है. जजमेंट में लिखने वाली चीज़ों के पीछे के राशनाल को बोलते हैं रेशियो डायसेंडेंटा. तो अब यहाँ पे क्या बीटी होती है कि ये लोग ना कुछ भी उठा के डाल देते हैं हेडलाइन में, चाहे वो कोई ओरल रिमार्क हो चाहे वो कुछ भी हो. क्या ये ओरल रिमार्क था या ये लिटरली कोई रिटन सबमिशन है? क्योंकि सजेस्ट से मुझे पता नहीं चल रहा, सजेस्ट से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा. और ये अगर ये रिटन सबमिशन है और इसके पीछे रेशियो है, राशनाल है, तो वो राशनाल क्या है हमें वो दिखाओ. इसलिए जजेस रेशियो डायसेंडेंटाई में वही चीज़ें लिखते हैं जिनको वो रैशनली जस्टिफाई कर सकते हैं, और इसीलिए जजमेंट्स आपके 1000 पेजेस के होते हैं, क्योंकि वो एक एक चीज़ जो आप पेपर में लिखते हो जजमेंट देते वक्त आपको वो जस्टिफाई करनी होती है, उसका रैशनल आपको लोगों को बताना होता है, ताकि वो जजमेंट अगर अपील भी हो तो ऊपर वाला जज भी उसे पढ़ के बोले कि अच्छा इसने ये बोला था इसलिए, जो इसने बोला है वो तो लिखा ही है, मतलब जज ने जो डिक्टेट करा है, जो जजमेंट दिया वो तो लिखा ही हुआ है, लेकिन उसके पीछे का रेशियो और रैशनल क्या है उसको पढ़ूं मैं. इसी के लिए वो जजमेंट के पेजेस 1000 पेजेस के होते हैं. ठीक है, तो ये 4 हेडलाइन कुछ नहीं है, 4 व्हाटएवर लाइन की हेडलाइन कुछ नहीं है. तो मुझे नहीं पता इस आंटी ने ऐसा क्यों बोला, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ने का मन नहीं है. ठीक है, तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ, बट आगे मैं सुन लेता हूँ तुम क्या बोल रही हो उस पर. बट अवॉइड दिस इज रियली बैड. Nirbhaya's mother to forgive the rapists. That's literally a child. At a time and a country where 15, 16, 17-year-old girls are already exploited, groomed, harassed, manipulated, let us just reduce the age of consent because that's our priority. Let that shit sink in. And she is the same woman, by the way. If you guys don't remember, this is something which I can never erase from my memory. She is the same person who said to Nirbhaya's mother to forgive the rapists of her daughter, of Sonia or Indira Gandhi. Chalo. While making this video, Azoo's situation, I thought about it in this way. Let me think from the point of view of the victim. When you're 18, 19, 20, up till 21, you don't make the most mature decisions. I have made mistakes. This is like my own personal life. I'm a human and I'm learning my way around life. And even at 24, I know I'm going 40-50 की उस तक हम सब मिस्टेक्स ही करते रहेंगे यार, to make a lot of bad decisions. I wouldn't really उससे भी ज़्यादा. इनफैक्ट जब तक हमारे पता है डिसीजन, आप कब मिस्टेक्स करना बंद करते हो, जब आप कुछ चीज़ें करना ही बंद कर देते हो बेसिकली. कि आप चीज़ें नहीं करोगे तो आप डिसीजंस में मिस्टेक्स कैसे लोगे? दैट्स लिटरली इट. व्हाई डू पीपल से कि अरे आप एज के साथ मिस्टेक्स नहीं करोगे? पता है क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें ही नहीं करोगे. सोच के देखो, सोच के देखो दोस्त, जब आपकी ज़िंदगी 60 साल की होगी तो आप करोगे क्या जिसमें मिस्टेक्स कर पाओ? कुछ करोगे नहीं, दिन भर बैठे रहोगे, पड़े रहोगे बिस्तर में. मिस्टेक्स करने का पॉइंट ही नहीं आएगा, तो आप करोगे ही नहीं. वरना ह्यूमन्स तो करते ही रहते हैं मिस्टेक्स. देयर इज नथिंग, यू कैन नॉट एवर बी वाइज. ठीक है, consider someone at 18 to be, fully grown adult. While I was thinking about this, एज ऑफ कंसेंट डज नॉट इक्वल टू फुल्ली ग्रोन अडल्ट. अगेन यार, इसीलिए पता है मैं आई डोंट लाइक नेट पिकिंग, बट जब आप लीगली और आप ऐसी चीज़ों को वो देखते हो ना क्रिटिसिज्म, तो यू हैव टू डू दैट. एंड दैट इज व्हाई आई अर्ज पीपल टू अवॉइड दिस व्हेन दे डू नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. I came across a headline that literally shook me and even changed my point of view. If you think age of consent is equals to fully grown adult, then tell me why वोटिंग के लिए 18 साल का होना पड़ता है बट दारू पीने के लिए 22 या 25 तक का. इनफैक्ट 23-21 भी है एज, 18 भी है, 19 भी है और 25 भी है एज. सेम ही चीज़ के लिए ऐसा क्यों है? क्या वो फुल्ली ग्रोन अडल्ट नहीं है? आप एक गाड़ी चला सकते हो लेकिन आप दारू नहीं पी सकते. तो देयर इज़ अ रीज़न वाई कि एज जो भी होती है, एज लिमिट, ये स्पेसिफिक कॉजेज़ के लिए डिसाइड होती है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेक्सुअल बातें हो रही है तो वो शायद उनका कहने का मतलब है कि सेक्सुअल कंटेंट इतना देखा जा रहा है और इतना एक्सेसिबल है कि अब 18 साल का होना ज़रूरी नहीं है टू बी एबल टू ग्रास्प द आइडिया ऑफ इट. अब नाउ दैट इज़ अ फिलोसॉफिकल डिबेट. डू यू थिंक इट्स इनफ और डू यू थिंक इट्स नॉट? बट देन सेइंग कि फुल्ली ग्रोन अडल्ट की एज 18, नो, दैट्स नॉट हाउ इट गोज. बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डोमेन्स की चीज़ें. A case where boys between the age of 10 to 14 assaulted a 6-year-old girl. And ऐसा बहुत होता होगा. the mother of one of these criminals said that the little girl deserved it. She's 6-year-old. 6 years old. Such parents should be put behind bars first. Now, with a situation like this, I can very clearly say the crime that they have committed cannot be justified with their age. Yes, statistically, it is more men who commit such crimes, who are more predatory. Then is that pure? That she cannot commit any crime. It's really cute.
12-year-old boy came up and asked for my autograph, and it was like really cute. And then I went, when I'm 70, this cute little boy will be like 30. No, I'm going. Another case that I saw, and I have even mentioned something like this Nothing wrong with it. It can be a little creepy for you, but I don't think there's anything wrong with it. ठीक है. पहली बात, जब औरतें ऐसी बातें कहती हैं, the reason why it's not predatory per se is because औरतें cannot really overpower men physically in most circumstances. That is why जब औरतें ऐसे comments पास करती हैं कि oh what a cute kid, I wish I could make you my boyfriend, that is not creepy. ठीक है. औरतें are very very, क्या कहते हैं, they are not harmful in that sense. जब मैं भी बच्चा था ना, मेरे को भी मेरी स्कूल की बहुत सारी सीनियर दीदी जो थी आपकी, वो ऐसे बोलते थे कि अरे अगर तू मेरी एज का होता तो मैं बॉयफ्रेंड बना लेती. वो सब क्यूट होने के लिए बोलती हैं. दे डोंट एक्चुअली मीन इट. दे आर नॉट फकिंग प्रेडेटरी व्हेन दे से दैट शिट. ठीक है. तो आप औरतों को इसमें मत घसीटो. ये इक्वल चीज़ नहीं है. अगर यही कोई मर्द होता जो बोल रहा था अरे जब भी मैं 80 साल का हूँगा ये लड़की 30 साल की हो जाएगी, तो इट इज़ क्रीपी. वाई? बिकॉज दे कैन फिजिकली overpower women and therefore the threat could be made. A threat can be there. ठीक है. तो ऐसा तो अगर आप देखो तो आप ये आंटी लोग भी छोटे छोटे बच्चों को लेके बहुत ही क्रीपी तरीके से बिहेव करती हैं. अगर आप जनरली क्रीपी देख रहे हो उसको तो, बट इट्स जस्ट nothing of that sort. No, I'm going. Another case that I saw, and I have even mentioned something like this earlier, where a woman assaulted two minor boys, two minor girls, and later she was arrested under POCSO. If That's very fucked up. there were no girls involved and these boys were at the age of 19, would she be arrested? Absolutely not. देखो, जब कोई चीज़ें, मेरा एक चीज़ समझो, जब भी कोई चीज़ें कहता है तो सिर्फ उन चीज़ों के कहने की वैल्यू से सोसाइटी डिटरमाइन नहीं करती कि ये चीज़ सही है कि नहीं है. उन चीज़ों जो उसने चीज़ें कही हैं उनकी होने की प्रोबेबिलिटी से सोसाइटी डिटरमाइन करती कि ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं बोलूँ कि वाइट हाउस को तोड़ देना चाहिए, तो मुझ पे कोई केस नहीं करेगा क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा. अगर मैं वहीं पे, अगर मैं कोई यूएस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, मैं बोल दूँ वाइट हाउस तोड़ देना चाहिए, इंस्टेंटली चीज़ें पलट जाएंगी. क्यों? क्योंकि मेरे बोलने से चीज़ें हो सकती है. सो बोलना इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉब्लमैटिक. डू यू इवन हैव द कैपेबिलिटी टू बी एबल टू डू स्टफ? दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. ठीक है. तो वो जो औरत थी उसने बोला ज़रूर, शी डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू वेट 30 years एंड देन डू स्टफ टू दैट गाय. ठीक है. ऐसे तो मोस्ट मर्द भी नहीं होंगे अनलेस यू आर क्लोज बाय देम. बट पॉइंट इज कि men anyway any day are more harmful than women when it comes to just physical overpowering. Therefore men's, these creepy comments should be taken more seriously than women. Therefore, that's as simple as it gets. Because it wouldn't be considered as a crime. Assault against men is considered as a joke. Most of the times it's made into a joke by men themselves. No, it's not a joke. Maybe it is 50-50. Not, I don't have an opinion on Let's that. not even get started with that shit. Now, with this precise case, I saw several reels open the comment section and women are making sarcastic jokes. What was he wearing? And I get it. You're trying to mirror the same questions that arises when something like this happens to women. But let me ask you this. When we say that these are sensitive situations and they should be handled, with a lot of seriousness, what are we doing? Whatever hatred that you have is towards men who spew venom against you and men who commit crime. But what was the fault of those minor boys who suffered? Even when people were asking me to make this video, a lot of said, Rika, please make a video and give us tea on the Azuz situation. Okay, it's tea for you. And I've blogged 5 or 6 people like this. ये ऐसे ही इसी नीच बना के ना मेरे कमेंट्स पे भी आए हैं बहुत सारे कमेंट्स. तो क्या कहते हैं उस पे, मेरी स्ट्रीम पे आते हैं. तो मेरा तुम्हें फिर गाली देने का मन करता है. जो तुम बार बार कहते हो टॉक अबाउट फकिंग अजूज वाला केस, कुछ नहीं है वो केस. कुछ नहीं हुआ उस केस में, सिर्फ चूतियाप हुआ है. और तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे. ठीक है. तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे. ठीक है. कि तुम इतने इन्वेस्टेड हो एक ऐसी चीज़ में जिसमें 2 लोग खुद प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व है. Precisely tell creators to cover this situation or that situation, not because you care about the victims, but also because it fits your agenda in a way, your side of the story. Nowadays, it's not about justice,
humanity. It's about proving a point. While victims are the ones who are still suffering, the ones who are guilty run free. End of the day, with such gruesome crimes, it's not about gender. It's absolutely not about someone's age. It's about people, humans. And when I hear shit like this back to back, I just feel like, when will we go extinct? Even the POCSO Act, which is meant to safeguard, recent sting operation done by Dainik Bhaskar exposes a woman who basically runs a crime syndicate where you can go to her, give her a certain amount of money, and if you want someone to be arrested, pay her money and she will send any girl to go sleep with that person, record it, and you can later blackmail. While in this video she also mentions that minors also can be arranged for this blackmail situation. And ठीक है, कैसे करोगे ये बताओ? 18 प्लस चाहिए आपको या 14 चाहिए? लड़की छोटी ना हो बड़ी, छोटी में तो लंबा गया तो उसको है सीधा, दिल्ली में सबको पता है, ना कोई जमानत ना कोई, 10 साल के लिए अंदर, और 10 साल का बंदा 2 दिन के सुन के नाम डर जाता है। own safety. If you're wondering, in this situation, they were always monsters. The fame that comes. स्मार्ट तो है लोग भाई, मैंने सोचा नहीं था वैसे इसके बारे में, स्मार्ट तो है, दैट्स एक्चुअली रियली स्मार्ट ऑफ हर। 14 प्लस लड़की से आप टच भी नहीं हो रहे ना बट, तो आप अंदर जाओगे, आप तो कोई भगवान भी नहीं रोक सकता उसको। I'm just saying this for your own safety. Do not trust anybody, especially people online, even me. Don't make exceptions at all. And people don't really turn into monsters. If you're wondering, in this situation, they were always monsters. The fame that comes with being in the public eye gives you access to a lot of things. In this case, access to a lot of young women. This That's true. person involved, I sent him an appreciation mail a month or 2 months back. And one last thing to young girls. If you are someone who's from a dysfunctional family, you don't have a good relationship with your parents, you've just broken up with your boyfriend, you don't have friends, you feel lonely. यार मुझे तो एक Never say चीज़ वो प्रॉब्लमैटिक लगती है यार, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी जड़ है कि आप ना पर्सनल ले जाते हो चीज़ों को। भाई मैं तुमसे ना एक बहुत ही मैन टू मैन बताता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ ना एकदम दिल की बात बताता हूँ, एकदम सच्ची बात बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? बहुत रियल चीज़ बोलता हूँ मैं तुमको, ठीक है? एंड दिस इज कंसिडर दिस टू बी सॉर्ट ऑफ अ मोनोलॉग, जो अगर मैं कभी फेमस हो गया आगे जाके तो आप इस मोनोलॉग को याद रखना। और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ मैं फ्यूचर में वापस इस पे अपना नज़र मारूँ। मैं जितनी भी चीज़ें तुम्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें कोट एंड कोट बातें बोलता हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी, आई टीच यू हाउ टू थिंक वट एवर द फक, I think out loud in a lot of cases. I tell you some new things. I try to, point is, मैं चाहता हूँ तुम उन सारी बातों को ना हमेशा, मैं ये अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं 10 साल से कह रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाता था, मैं तब से कह रहा हूँ कि भाई ऑलवेज जितनी भी मैं चीज़ें तुमसे कहता हूँ, जो म्यूज़िक मैं बनाता हूँ, जो चीज़ें मैं करता हूँ, मैं कोई कपड़े भी डिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, डोंट लुक एट देम एज कि ये मैंने करी हैं या राज ने करी है। जस्ट लुक देम एज थिंग्स, इंडिविजुअल थिंग्स, सेपरेट एंटिटीज। मैंने कोई कपड़ा बनाया तो वो कपड़ा कैसा है, मैंने कोई आइडिया बताया तो वो आइडिया कैसा है, मैंने कोई बात बताई है, मैंने कोई क्रिटिसिज्म दिया था, वो क्रिटिसिज्म क्यों है, उसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। मुझसे लिंक करके मत देखा करो, क्यों? क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, ठीक है? मेरी पूरी हिस्ट्री बदनाम है। बहुत सारे नए लोगों को लगता है कि मेरी बहुत ही खुशनुमा लाइफ रही है, बहुत अच्छी ज़िंदगी रही है, उनको कभी गलती से पता चल जाए कि मेरे स्कूल और कॉलेज में क्या क्या हुआ है, तो उनको लगेगा उनके साथ एक्सपोजे हो गया, स्कैम हो गया उनके साथ, कि भाई हम के साथ भी को देख रहे हैं, के साथ भी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई अच्छा बुरा बनाया ही मत करो किसी को, तुम्हें जो दिया जा रहा है तुम उसे लेना सीखो, ठीक है? तुम अपना दिमाग डेवलप करो, ठीक है? मैं कभी पर्सनली जितने भी लोगों को मैं सुनता हूँ, जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ, चाहे वो जॉर्डन पीटरसन हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो कोई भी हो, सब गालियाँ बकते हैं उनको किसी न किसी चीज़ को लेके। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। विकास दिव्या कीर्ति मुझे पसंद है, लोग उसको भी गालियाँ बक रहे हैं, लोग सबको गालियाँ बकते हैं। हर इंसान में कमियाँ होती है, हर इंसान कहीं अच्छा होता है, कहीं बुरा होता है। गांधी को गालियाँ पड़ रही हैं, आज के लोग गांधी को गाली बक रहे हैं, नेहरू को गाली बक रहे हैं। आज के लोग 2026 में इंडिया में पैदा होके गांधी और नेहरू को लोग गालियाँ बक रहे हैं, बताओ। अम्बेडकर को गालियाँ बक रहे हैं, जिनको ये ना पता हो कि उनके मोहल्ले का एमएलए कौन है, वो बैठ के बोल देते हैं कि हाँ ये लोग तो चूतिया थे, ये लोग तो ऐसे थे, ये लोग तो वैसे थे, जिनको खुद के मोहल्ले के एमएलए का नाम ना पता हो, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई पसंद भी है
तो तुम उससे जब दूसरों को भी इंट्रोड्यूस करवाते हो, इंस्टेड ऑफ ये लड़का बहुत अच्छा है, ये यूट्यूबर बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ऐसा बोल के सिंपली दिस कि ओ ही शेयर्स वेरी गुड स्टफ, देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन हिज कंटेंट, ऐसा बोलो। उस पे वैल्यू मत डालो, उस आदमी को मत बढ़ाओ, ठीक है? वो आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता, ह्यूमंस फ्लॉड ही होते हैं आप। लेकिन हाँ, वो जो काम कर रहा है वो जरूर अच्छा हो सकता है। मैंने क्या बोला था, अजूज ने जितने वीडियोस बनाए वो वीडियोस सारे अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं वो, क्योंकि अच्छी बातें कर रहे हैं, परफॉर्मेटिव है, तो क्या हुआ? अगर कोई आदमी इंटरनेट में आके बोल रहा है कि एक लड़की का एमएमएस वायरल मत करो, ये बात थोड़ी ना खराब हो जाएगी जस्ट बिकॉज वो आदमी ग्रेपिस्ट निकला, तो बात तो सही रहेगी। और वही वैल्यू है, वही चीज तुम्हें लेनी है, तुम उसे लो और बाकी चीजों को साइडलाइन कर दो, ठीक है? तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें कि वो जेल पे भी चले जाए तो भी उसके वीडियो थोड़ी ना खराब हो जाएंगे। अगर वो कल को मुंह से बोले ना कि भाई मैं बड़ा घटिया इंसान हूं, मैं तो मानता भी नहीं जो मैंने बोला, उससे भी वीडियो खराब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने बातें सही करी हैं, बातें अच्छी करी हैं, समझ रहे हो? और तुम्हारे घर में कौन सा वो आटा का चक्की का आटा लाके दे रहा है कि रोटी नहीं बन रही तुम्हारे घर में अगर अजूज जेल में चला गया तो, ठीक है? तो ये आइडल वाइडल ये सब मत बनाया करो यार तुम लोग, ये सब। मुझे भी बहुत अजीब अजीब डीएम्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखते हो, कभी कभी इंपोस्टर सिंड्रोम हो जाता है, इतने अच्छे शब्दों के लायक नहीं हूं मैं, और कोई नहीं है भाई, मेरे को तुम छोड़ो, कोई नहीं है भाई इतने अच्छे शब्दों के लायक जितना तुम्हें लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आधे से ज़्यादा टाइम तो भाई मैं लोगों की दुखद भरी कहानी इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मुझे दया आ जाती है, वरना मेरे अंदर से मन नहीं करता। मैं कोई तुम्हारा गुड पर्सन नहीं हूँ भाई, मैं बहुत कामचोर इंसान हूँ, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। मुझे तुम जब बड़े बड़े मैसेजेस भेजते हो ना, ये हो गया वो हो गया, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई, मेरा मन नहीं करता तुम्हें रिप्लाई करने का। मैं बस इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई रिप्लाई ना करूँ तो वो चीज़ और मुझे परेशान करेगी। तुम जब मुझसे मदद मांगते हो तो मैं परेशान होता हूँ, बट मैं अगर मदद नहीं करूँगा तो मैं और परेशान होगा। मैं इसलिए रिप्लाई करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को तुम्हारी मदद करने में कोई शौक है, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी मदद करना। और मैं अगर कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया तो मोस्ट लाइकली आई विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू डीएम्स, क्योंकि उस वक्त इतने आएंगे तो मैं बहाना मार सकता हूँ कि मुझे बहुत डीएम्स आते हैं। अभी क्या है, मैं बहाना नहीं मार सकता कि मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं, और सारे बड़े लोग यही करते हैं। जितने बड़े फेमस लोग हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे हमने देखा ही नहीं, देखते सब है, बोलते हैं देखा ही नहीं। अभी मैं उतना बड़ा नहीं हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो मैं कर देता हूं।